Hello everyone. So we were studying the motion, fine, and today's topic is acceleration. ठीक है आज हमें पढ़ना है acceleration क्या है what is acceleration. So let's start. How acceleration is given. Now I am going to give you an example. Suppose you are going from anywhere, from A to B. Was your speed same throughout this journey? क्या आपकी स्पीड A से B तक जाने में पूरा कांस्टेंट थी? Then we can say your motion was going with, or you are going with constant velocity. If there is some change in the velocity of this motion, if any particle, then this is called acceleration. If you define correctly in this word, it is the rate of change of velocity per unit time. यानी कि यूनिट टाइम में कितनी आपकी वेलोसिटी चेंज होती है, दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन. मान लो यहाँ पे v1 थी, यहाँ पे वेलोसिटी आपकी आकर के v2 हो गई, थोड़ी ग्रेटर है, और यहाँ से यहाँ तक आने में आपको डेल्टा t टाइम लगा या t टाइम लगा. दिस एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम. फाइन. This acceleration is defined as rate of change of velocity per unit of time. If we go in calculus, ये भी हम समझेंगे कि ये nothing but dv by dt. Again, acceleration is an vector. Acceleration is a vector, and its unit is meter per second square. So how we will use the acceleration? It is often used in the numericals. Fine. So how is it used? I am giving you one example. Suppose a bus is moving with 20 meter per second. Fine. After 2 seconds, what will be? After 2 seconds, what will be its speed if it is accelerated through 4 meter per second square? It means इसके बाद acceleration जो है 4 meter per second square हो गया, टाइम इतना, यानी acceleration is 4, टाइम है आपका 2. आफ्टर 2 सेकेंड वी हैव टू फाइंड v2. v1 क्या है आपका 20 मीटर per second. 4 to the 8 minus 8, it means v2 will be 28 meter per second. So this is the use of acceleration. Fine. I hope you have understood the concept of acceleration. That what is acceleration? This is the rate of change of velocity per unit of time. So now we are going to start the graphs. Fine. What is graph? We have to, if we have to represent a motion in a graphical method. How is it represented? I take, this is x-axis, y-axis, coordinate axis. I will change the quantities on both the axes. For example, somewhere it will be time, it will be velocity, it will be displacement. So we are going to watch all type of graphs that is possible in our syllabus. So first I am going to discuss डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या? दिस इज योर टाइम and this is your displacement. Means on y axis we are plotting the displacement of the body, and on x axis we are plotting time. How does it plot?
We all know about this method. This is displacement, this is time, value 0, 0, 1. Put their corresponding values according to relation, and then we will put this in coordinates. I hope you know all about this simple mathematics. So suppose the displacement time graph is parallel to x-axis. It means if time is increasing but displacement is same, time is increasing but displacement is same, so what can we see? यानी कि टाइम के निकलने के साथ डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल सेम है. फाइन. इसका मतलब बॉडी कैसी है? Body is at rest. Body is at rest means velocity will be 0. यानी कि टाइम इंक्रीज हो रहा है बट डिस्प्लेसमेंट सेम है. इट मीन्स द बॉडी इज एट रेस्ट, इट्स वेलोसिटी इज 0. फाइन. फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट ग्राफ. सेकेंड ग्राफ, this is displacement, this is time. If displacement time graph is straight line passing through origin, अगर कोई भी displacement time graph straight line है और जो कि origin से पास हो रहा है तो क्या होगा? origin से पास होते टाइम क्या है? इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर. इट मीन्स बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड. स्पीड क्या होगा इसमें? कैसे निकाल सकते हो? मान लो ये ग्राफ, इस पे 2 पॉइंट. मान लो डिस्प्लेसमेंट को मैंने बोला S1 T1, यहाँ पे एक पॉइंट है S2 T2, तो स्पीड क्या हो जाएगा? S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1. और मान लो ये वाला जो एंगल है इससे थीटा बना रहा है, इसी को हम लोग tan थीटा भी बोलते हैं और स्लोप भी बोलते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई एम गोइंग टू राइट दिस हियर. स्पीड कैसे निकालेंगे इससे? या तो S2 माइनस S1 और T2 माइनस T1, ठीक है. या तो tan थीटा निकाल दो या स्लोप. मतलब अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से स्पीड निकालनी हो, वेलोसिटी निकालनी हो, तो क्या निकलेगा? हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं. अगर थीटा एंगल दिया हुआ है तो tan थीटा निकाल सकते हैं. अगर हमें ये पॉइंट्स दिए हुए हैं तो हम इन दोनों पॉइंट्स को डिवाइड S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 कर सकते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है. ठीक है, तो tan थीटा हर पार्ट के लिए, हर पॉइंट के लिए सेम होगा, तो स्पीड को हम लोग क्या बोलेंगे? कांस्टेंट हो रही है. फाइन. अब हम आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ. हमने क्या सीखा इससे पहले? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है हमें? स्पीड देगा, वेलोसिटी देगा. अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और वेलोसिटी इधर टाइम, अगर ये ग्राफ कुछ ऐसा है तो क्या हो रहा है? अगर ये ग्राफ ऐसा है, इसका मतलब वेलोसिटी टाइम के साथ साथ कांस्टेंट है. टाइम इज इंक्रीजिंग बट वेलोसिटी इज कांस्टेंट. वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट. Fine. What is its slope? Slope is 0. It means acceleration is 0. वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो देगा वो एक्सेलरेशन देता है. ठीक है. अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ ऐसा है, इसका मतलब है रेगुलर इंटरवल पे, यानी कि इक्वल इंटरवल पे इक्वल इंक्रीमेंट इन द वेलोसिटी, and this line is straight means slope is constant. It means
एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट हो गया। एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे पता है, अगर ये थीटा एंगल दिया हो तो, या फिर मान लो ये v1 t1 v2 t2, tan theta will be v2 minus v1 upon t2 minus t1, fine, this slope is constant। ठीक है, एक्सेलरेशन फाइंड करने के ये तरीका है। स्लोप कैसा है, थीटा एक्यूट एंगल, तो tan थीटा विल बी पॉजिटिव, इस मीन स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव, इट मीन एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ को मैंने ऐसे बना दिया, इसका क्या मतलब, वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इस टाइम पे जीरो, इट मीन्स थीटा विल बी obtuse angle and acceleration will be negative। ठीक है, fine, so this was your velocity time graph, we know the slope of this velocity time graph gives us acceleration, हमें acceleration देगा। अब इस पे मान लो क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, this is velocity, fine, suppose this is velocity, this is time, दिस इज ए एंड बी। क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें से किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है और कैसा है। तो सबसे पहले तो स्ट्रेट लाइन है, मतलब एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। दूसरी बात, किसका ज़्यादा है, ज़्यादा निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, ज़्यादा निकालने के लिए हमें ये देखना है कि किसका स्लोप ज़्यादा है। स्लोप क्या होता है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये कितना ज़्यादा टिल्टेड है, जो ज़्यादा टिल्टेड है उसका ज़्यादा स्लोप हो जाएगा। ये देखो, एक स्लोप नीचे, इसका स्लोप हाई है, इट मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ ए विल बी ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ बी, फाइन। सेम विथ displacement time graph, where slope is given by its speed, fine। I hope you have understood the concept of velocity time graph and displacement time graph, fine। Now acceleration time graph, this is acceleration time graph, means acceleration is constant if a body is freely falling on the earth। अगर एक बॉडी एक ऊपर वाले पार्ट से अर्थ पे, ये अर्थ है, यहाँ नीचे गिर रही है, तो इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करने को आ जाए। तो आपको पता है इस अर्थ के पास एक्सेलरेशन क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज कांस्टेंट, एंड दिस विल बी लाइक दिस। ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज आस्क्ड इनटू फॉर conversion of, question is asked for the conversion of velocity time graph to acceleration time graph and acceleration time graph to velocity time graph, fine। So suppose this is your velocity time graph, this is velocity time graph, fine, this is your velocity time graph, and you have to draw acceleration time graph corresponding to this। How can you draw, we will divide this graph into three parts, and we will try to find the acceleration for all three parts, and we will put on this graph। So कैसे करेंगे, फर्स्ट पार्ट हमने देखा यहाँ से यहाँ वाले पार्ट, ये एक्स एक्सिस से पॉजिटिव, एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल बना रहा है, इट मीन्स एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। और कैसा होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ है,
so acceleration will be constant. Fine. तो यहाँ से यहाँ तक एक एक्सेलरेशन की वैल्यू जो होगी वो कांस्टेंट होगी. यहाँ पे वेलोसिटी सेम है. जब भी वेलोसिटी सेम होती है इट मींस एक्सेलरेशन कैसा होगा, जीरो हो जाएगा. यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो हो जाएगा. तीसरी, जब हम यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है. यानी कि थीटा एंगल जो बनेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से वो हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल. एंड ऑब्ट्यूस एंगल के लिए वो क्या होता है, नेगेटिव. मीन्स एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव. बट स्लोप को ध्यान से देखा जाए, स्लोप ये ज़्यादा टिल्टेड है ये वाली इसके रिस्पेक्ट में. इस मीन्स जो वैल्यू जो यहाँ पे थी ना, अगर ये मान लो ये वैल्यू थी P, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी Q वो कुछ ऐसे होगी. एंड द वैल्यू ऑफ दिस Q will be greater than P. I am talking about magnitude, not with the sign. फाइन. अगर साइन के साथ देखें तो Q और भी ज़्यादा छोटा हो जाएगा. तो इस टाइप के क्वेश्चंस मेनली आज पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो आपको याद रखना. ठीक है. अब हम और आगे ग्राफ पे देखते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं. मान लो क्वेश्चन हो ऐसे, इफ दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड थीटा दिया हुआ है, यहाँ से एंगल थीटा की वैल्यू मान लो 60 डिग्री है. ठीक है. what will be velocity at suppose if initial velocity it means u is 0. initial velocity को हमने 0 ले लिया, तो what will be the velocity of at t is equal to √3 सेकेंड. वेलोसिटी क्या होगी एट √3 सेकेंड. ठीक है. कैसे करोगे आप ट्राई कर सकते हो. पहले कैसे कर सकते हैं हम इसको, हमें क्या करना होता है एक्सेलरेशन के लिए, वेलोसिटी निकालनी है. तो एक्सेलरेशन पता है क्या, इसको हम एक्सेलरेशन निकालने के लिए ग्राफ का पॉइंट्स को हम लोग माइनस कर सकते हैं या फिर tan थीटा ले सकते हैं. यहाँ पे थीटा मालूम है, यानी कि एक्सेलरेशन इज नथिंग बट tan थीटा इज नथिंग बट v माइनस यू बाई t2 माइनस t1. फाइन. सो इस वाले पॉइंट को कंसिडर कर लेते हैं 0 0, यानी कि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 एट t इज इक्वल टू 0. तो a इज इक्वल टू tan थीटा. tan थीटा इज tan 60 डिग्री. tan 60 कितना होता है, √3. v हमें फाइंड करना है. u जो है हमने यहाँ पे लिया हुआ पहले वाला वो है 0, और t2 माइनस t1 देखें तो √3 माइनस 0. ठीक. ये हमारा इक्वेशन बन गया जो हमने अभी तक पढ़ा था इस हिसाब से. और हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो उस वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी √3 इंटू √3, इट मीन्स 3 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. तो इस टाइप से क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं एग्जामिनेशन से. ध्यान रखना है, यू हैव टू नो द कॉन्सेप्ट कि हमें बेसिक कॉन्सेप्ट की करना कैसे है. द रेस्ट इज योर mathematics. So I hope you have understood the acceleration. Now when we will study about the equation of motion, acceleration will come out. This is very important part for this chapter. So keep revising it, do practice more on this topic, do more questions. Fine. Thanks. Smart Future Point online tutorial. Visit on www.smartfuturepoint.com and contact us on 9210767600
and second number 999